Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about three-dimensional shapes. A very easy topic for you. This today's lesson about different shapes you observe in your daily life. तो बच्चों, आज के सेशन में हम जमा शशु में रियाजी मज़मून में साबादी अजसाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, और ऐसा है जो कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन शेप्स का, इन अजसाम का आप मुशाहिदा करते हो। तो बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत हम यहाँ पर जो है तो पहले कुछ मालूमात से करेंगे, मालूमात देंगे हम आपको, और उसके बाद जो है तो प्रैक्टिस सेट जो हमारा 41 है वो हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम। यहाँ आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस तस्वीर में different type of shapes, and definitely its name is already Mr. Shape. So will you tell me which shapes you are observing here? So then you will may say that triangle, then circle, then quadrilaters, then cubes, then cuboids, then cylinder. Okay, from all these shape you are observing in this picture. Okay, so in this today's lesson, similarly we are going to observe all these kinds of shapes. Okay, तो बच्चों हम यहाँ पर आज के सेशन में मकब नुमा है, मकब है, इसके अलावा मुसल्लसी मंशूर है, सवाना, हरम, मुरब्बई हरम, मुसल्लसी हरम, मखरूत और कुर्रा, इस तरह से हम यहाँ पर आज के सेशन में ये तमाम अजसाम की मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते चले कि 3D क्या होता है, व्हाट इज़ a three-dimensional shapes. So 3D objects or solid have three dimensions, which are that first is length, then width, and then depth. So these three things we observe in any three-dimensional shapes. ठीक है, तो बच्चों आपको ये बात यहाँ पर याद रखना है कि कोई भी साबादी अजसाम में हम उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसके डेप्थ का हम यहाँ पर मुशाहिदा करते हैं। ठीक है, so in this picture, which things you are observing? First, I say that I used cylinders, then rectangles, then 6 cubes are here, which you're observing. 6 cube, where it is, so 1, then 2, then 3, then 4, then 5, and then 6. So 6 cubes are here. What rectangle is here? Okay, then cylinders are here. Okay, these are the cylinders. Then 6 cubes are here. Then one is square is here. This is one is square. Then one circle is here. The face is showing the circle. Then you can say
one triangle is here, which is looking as a cap. Okay, so and this Mr. Shapes picture, you observe these all shapes. Okay, so here you may observe many things in your day-to-day life. So we are talking you about the three-dimensional shapes. So we observe the height first, then breadth, then length in any kind of three-dimensional shapes. So here is a rectangular prisms. So you are observing here height, length, breadth. So this is a three-dimensional shape or 3D shapes. So we are coming to the topic here. So first of all we are observing here cuboid, means मकब नुमा जिसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एक क्यूबॉइड को, एक मकब नुमा को. ठीक है, तो इस शक्ल का आप मुशाहिदा कर रहे हैं, इस शक्ल को आप देख रहे हैं. सो मकब नुमा में हम देखते हैं आमतौर पर क्या होता है. तो आप देखेंगे मकब नुमा में जो है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वर्टाइसिस के बारे में, यानी कि रास के बारे में. तो आपको बताते चले कि यहाँ पर वर्टाइसिस यानी कि रास इस शेप में कौन कौन से हैं, यानी क्यूबॉइड में. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए है, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी और एच. सो these are the vertices and this cuboid. Okay, so you are observing that there are 8 vertices in this shape. Okay, thereafter you are observing this AB. So this AB, then this BC, then CD, then DA, then EF, then FG, then GH, then HE, then AE, then BF, then CG, and then DH. So here you observe that these are the total 12 edges here you observe here. Okay, so like this cuboid we have 12 edges. Okay, how many edges? 12 edges. Okay, तो बच्चों हमने यहाँ पर मुशाहिदा किया है कि यहाँ जो किनारे होते हैं आमतौर पर, जैसे हमने ए बी बी सी डी सी ए डी है ना, ई एफ जी जी एच एच ई ए ई बी एफ सी जी डी एच देखा है. तो हमने इस तरह से यहाँ पर जो है तो 12 किनारों का मुशाहिदा किया है ना, कितना जिसे हम कहते
क़िता के नाम से जानते हैं, क़िता ए बी, क़िता बी सी, है ना, जिसे हम सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी इस तरह से कहते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि इस तरह के मकबनुमा में जो है तो आमतौर पर 8 रास होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर मुशाहिदा किया। इसी तरह से 12 किनारे होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर अभी मुशाहिदा किया है। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है बच्चों कि कोई भी जो मकबनुमा होता है उस मकबनुमा को मुस्ततीली मंशूर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे, क्या कहते हैं इसे? मुस्ततीली मंशूर। जैसे कि हमने इससे पहले के शेप में देखा था, उसका नाम हमने क्या देखा था? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ओके, मुस्ततीली मंशूर। अब हम यहाँ पर मज़ीद बात कर रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में, मकबनुमा के बारे में। तो ये आपको ये सारे किनारे आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ठीक है, किनारे आपने देख लिया है, इसके अलावा आपने यानी कि एजेस और वर्टाइसेस आपने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सतह के बारे में, है ना। सतह यानी कि फेसेस। तो फेसेस समझने में जैसे कि हमने यहाँ पर जो है तो अभी देखा था, तो उसमें हमने ऑब्ज़र्व किया था बहुत सारी चीज़ों को। उसमें हमने यहाँ पर जो है तो अभी जो एजेस देखे हैं उसे यहाँ पर जैसे सेगमेंट ए पी है, सेगमेंट जो है तो इसके अलावा बी क्यू हमने देखा है ना। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है तो सी जी देखा, सी आर देखा हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो ये सारे 12 एजेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। 12 एजेस का ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो इस तरह से हमने यहाँ पर 12 किनारे, 8 रास्ते देखी है। अब मज़ीद हम यहाँ पर सतह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो सतह होती है वो किस तरह की होती है क्यूबॉइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे हम फेसेस कहते हैं। ए, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या हो गई? यहाँ पर इसकी एक सतह हो गई। दूसरी सतह अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको नज़र आएगी ये ए बी एफ ई, ये एक सतह होगी, ये एक फेस हो गया इसका। फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर बी सी जी एफ, ये एक सतह हो गई यहाँ पर इसकी। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर ए डी एच ई, ये जो है तो चौथी सतह हो गई इसकी। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये इसका एक फेस हो गया। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये डी सी जी एच, ये एक इसकी सतह हो गई, ये इसका फेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया दैट देयर आर 6 फेसेस इन द क्यूबॉइड। ओके, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि जो क्यूबॉइड होता है इसमें जो है तो 6 सतह होती है, इसके 6 पहलू होते हैं इसमें। ठीक है, और मुस्ततीली होती है, तमाम पहलू हम देखते हैं इसके अंदर कि मुस्ततीली होती है। और मुकाबिल की सतह जो होती है, पहलू जो होते हैं उसमें यकसा होते हैं, एक जैसे होते हैं। आमने सामने की जो इसके सतह होती है वो हमेशा एक जैसी होती है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, यकसा होती है। सो द फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे शेप्स है जिनका हम मुशाहिदा करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ब्रिक्स है, ईंट को आप देखते हैं,
इसके अलावा आप बहुत सारे बिस्किट के पैकेट्स आजकल हमने देखा है इस तरह से आते हैं, मिठाइयों के बॉक्स आपने देखे हैं, है ना, और गिफ्ट के बहुत सारे बॉक्सेस आप देखते हैं इस तरह से। घर में आपके डेफिनेटली कुरान होगा या और भी दूसरी बुक्स, डिक्शनरी होगी आपके घर में, उसको आप ऑब्ज़र्व करते हो तो काफ़ी मोटी किताबें होती हैं ना, तो वो भी इस तरह की शेप में हमें नज़र आती है। कौन सा शेप होता है ये? आमतौर पर मकब नुमा का शेप होता है, क्यूबॉइड का शेप होता है, और इस शेप को आप अक्सर जब खोलेंगे या बनाएंगे इस तरह के बॉक्स, तो ये इस तरह का डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। इस डिज़ाइन से आप इसको देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी सतह है इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सतह नज़र आ रही है आपको। अगर आप इस तरह के बॉक्स को ओपन करते हो तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सतह आपको नज़र आएगी। अगर आप इसके अंदर किनारे देखेंगे तो किनारे भी आपको बराबर से इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है ना। इसका हर एक का अगर हम एक किनारा यहाँ पर देखते हैं तो आपको बराबर से नज़र आएगा, है ना। 6 है, 7 है, 8 है ना, 9 है, फिर यही आगे बढ़ेगा 10 11 और ये 12 इस तरह से, क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे देखते हैं। कोने तो आप आसानी से इस तरह से जो हमारा बनी हुई चीज़ है उसके यहाँ से आप कोने उसके देख सकते हो। 1 2 3 है, यहाँ पे 4 है ना। और कोने यानी कि जिसे हम रास कहते हैं ना, वर्टाइसिस कहते हैं, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये 8 कोने हैं इसके। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम क्यूब के बारे में बात करेंगे, यानी कि मकब के बारे में, ठीक है। तो मकब के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, और इस DIF से आप समझ रहे होंगे बच्चों की जो सतह नज़र आ रही है आपको, है ना, फेसेस नज़र आ रहे हैं इसके अंदर आपको। तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि कितने फेसेस यहाँ पर क्यूब में होते हैं, या आप यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं इसे, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे द डाइस हैज़ अ शेप ऑफ क्यूब, अ क्यूब हैज़ 12 एजेस, 8 vertices and 6 faces. Okay, so all its faces are square. ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि पासा मरबे की शक्ल का होता है आमतौर पर, और मकब के 12 किनारे, 8 रास और 6 सतह यानी पहलू यानी मुरब्बे होते हैं, ठीक है। तो इसे यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप इस फिगर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर अगर गौर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आप इस शेप को, तो यहाँ पर आप वर्टाइसिस के बारे में बात करेंगे तो A है, B है, C D E F G और H, these are the vertices of this figure. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जैसे हमने मकबनुमा में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी जो है, तो कितने रास है, कितने कोने हैं इसमें, तो आपको नज़र आएगा इसके अंदर 8 रास है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एजेस। ओके, एजेस कितने हैं इसके अंदर, किनारे कितने हैं। ओके, सो यू सी दिस वन AB, देन BC, then CD, then DA, okay, thereafter EF, then you will see FG, thereafter GH, and then you will see HE, okay. So thereafter you are observing AE, then BF, then CG, okay, then DH, okay,
सो दीज ऑल आर द एजेस, ये तमाम हम किनारों का मुशाहिदा यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि मकब के जो है तो 12 किनारे होते हैं। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर 8 रास, और अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 6 सतह के बारे में यहाँ पर, ठीक है, कि इसकी जो है तो 6 सतह कौन सी है उसके बारे में हम यहाँ पर मुशाहिदा करते हैं कि क्यूब के अंदर जो है तो 6 सतह कौन सी है। So here students, you are observing the faces of this shape cubes. So you can observe here that A, B, C, D, this one, then A, B, F, E, A, B, F, E, this shape, then B, C, G, F, B, C, G, F, this one, then A, D, H, E, A, D, H, E, this one, okay, then E, F, G, H, E, F, G, H, this base one shape, this, then D, C, this backside shape, this one, D, C, G, H. So these all are the faces of this cube. Okay, so इस तरह से बच्चों आपने देखा कि मकब की जो है तो 12 किनारे, 8 रास और 6 सतह यानी पहलू होते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। इस तरह से आप अपने डेली लाइफ में इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप देखते हैं आपकी डेली लाइफ में इस तरह से बहुत सारे शेप्स आपको दिखाई देते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, आमतौर पर क्यूब कहलाते हैं ना, ठीक है। इस तरह से क्यूब, आप आइसक्रीम की क्यूब भी खाते हो, आप जो है तो आइस की क्यूब जो आती है फ्रिज में वो भी खाते हो, है ना, क्यूब बॉक्स कहते हैं उससे हम, है ना। तो हमें याद रखना है आपको कि इस तरह के जो डाइस आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो आप सांप सीढ़ी खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते हो आमतौर पर, ठीक है। सो ये तमाम इसके जो शेप्स, इसके फेस होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? स्क्वायर में होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों आज के सेशन में हमने यहाँ पर क्यूब तक आपको मालूमात दी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद मालूमात आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।